Back to my channel. Today we'll discuss MSc 007 important question. What are various forms of economic integration? How is trade diversion different from trade creation? Explain. So, economic integration, the theory of economic integration refers to commercial policy of discriminatively reducing or eliminating trade barriers only among the nations joining together. The degree of economic integration ranges from first preferential trade agreements, that is zero or lower tariffs on selective goods but higher tariff on non-members. Next is free trade area, FTA, zero trade barriers on trade within members on all goods बट बैरियर्स ऑन ट्रेड विद नॉन मेंबर. सो डिफरेंट क्या है, प्रेफरेंशियल में सिलेक्टिव गुड्स पर ज़ीरो या लोअर टैरिफ होता है, वेराज फ्री ट्रेड में सारे में होता है, ऑल गुड्स में ज़ीरो या लोअर टैरिफ होता है. और दोनों में सेम क्या चीज़ है कि बैरियर्स होते हैं टैरिफ या टैरिफ होता है या बैरियर्स होते हैं ट्रेड में विद नॉन मेंबर्स. थर्ड है कस्टम यूनियन, इसमें होता है नो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन ऑल गुड्स, दैट इज़ फ्री ट्रेड एरिया और प्लस कॉमन टैरिफ रेट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इधर कॉमन टैरिफ रेट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए. नेक्स्ट है कॉमन मार्केट, वो क्या है, कस्टम यूनियन गुड्स वाला प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनियन एंड मॉनेटरी यूनियन, इसमें भी क्या है, कस्टम यूनियन प्लस यूनिफाइंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज. नेक्स्ट है only monetary union, that is custom union plus adoption of single currency. With every stage there exists deeper economic integration. In reality however countries may not adapt the sequence in strict manner, ज़रूरी नहीं इसी sequence में follow करेंगी. Due to economic integration trade increases among member countries and productivity is gained. The main reason for regional trade integration is embedded in these theories of trade creation is the theories of trade creation and trade diversion. So पहले trade diversion क्या है, it means that a free trade area diverts trade, ये क्या divert करते थे trade away from a more efficient supplier outside free trade area towards a less efficient supplier within free trade area. तो divert हो जाता है जो कि एक efficient supplier लेकिन वो outside free trade area में है towards a less efficient country या supplier जो कि within free trade area होता है. In other words it means that when lower cost imports from outside the custom union are replaced by higher cost imports from a union member. तो ट्रेड डाइवर्जन रिड्यूस करता है वेलफेयर बिकॉज शिफ्ट्स प्रोडक्शन फ्रॉम मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर आउटसाइड कस्टम यूनियन टू लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर इनसाइड सीयू कस्टम यूनियन. ठीक है, थस ट्रेड डाइवर्जन वर्सन्स द इंटरनेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शिफ्ट्स प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज. नाउ तो एग्जांपल देखो, बिफोर फॉर्मिंग कस्टम यूनियन, so DX and SX are nation 2's domestic demand and supply curve of commodity X, while S1 and S3 are free trade perfectly elastic supply curve of nation 1 and 3 respectively. With a non-discriminatory 100% tariff on imports of commodity X, nation 2 imports commodity X from nation 1 at price of X equals to $2 along S1 plus T. Nation 2 consumes 50X विच इज़ इक्वल्स टू 20x प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, 20 तो वो खुद ही प्रोड्यूस करता है नेशन 2 और 30 इम्पोर्ट करता है नेशन 1 से. सो नेशन 2 कलेक्ट्स 30 इन टैरिफ रेवेन्यू, ₹2 के हिसाब से 30 यूनिट करता तो 30 यूनिट ₹2 प्राइस है ना, पहले 1 था अब 2 है, तो डोमेस्टिकली तो टैरिफ कितना होगा, ₹1 होगा क्योंकि ₹2 का वो बेच रहा है और ₹1 तो टैरिफ के साथ ₹2 है, वैसे ₹1 है डोमेस्टिकली तो ₹1 एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है, तो 1 × 30 दैट इज़ ₹30 हो जाएगा टैरिफ रेवेन्यू. नाउ अगर वो फॉर्म कर लेता कस्टम यूनियन नेशन 3 के साथ, पहले वो नेशन 1 के साथ बिफोर फॉर्मिंग कस्टम यूनियन वो नेशन 1 से 30 यूनिट्स इंपोर्ट कर रहा है, बट अगर वो फॉर्म कर लेता कस्टम यूनियन नेशन 3 के साथ, ठीक है, तो इन नेशन 3 में जो प्राइस है, ये देखो ये प्राइस है डोमेस्टिकली, ये ₹2 उसका है और ₹3 इसका है. ठीक है, विद आफ्टर टैक्स. नाउ इफ द नेशन 2 नाउ फॉर्म CU customs union with nation 3 only, that it remove tariffs on import from nation 3, nation 2 find it cheaper to import X from nation 3. क्यों, क्योंकि उसका डॉलर हो गया $1.5 क्योंकि 100% वो टैरिफ लग रहा है. देखो प्राइस ऑफ X अगर 1.5 है तो नेशन 2 कंज्यूम 60X, देखो 1.5 पे यहाँ 60 आ रहा है, ये पॉइंट देखो ये 60 है. ठीक है, जिसमें कि 15 यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे 15 वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही हैं और 45 वो इम्पोर्ट करें नेशन 3 से,
और कोई टैरिफ रेवेन्यू नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी CU का मेंबर है, तो टैरिफ तो लगेगा ही नहीं। Thus the imports into nation 2 have been diverted from more efficient producer nation 1 to less efficient producer nation 3 as tariffs discriminate against imports from nation 1 which is outside CU. So welfare effect of trade diversion देखो, कंज्यूमर सरप्लस ABCD, ये छोटा ट्रायंगल, ये और ये जो उनको पहले 2 रुपीज़ था, 1.5 है, उससे जो गेन हो रहा है कंज्यूमर्स को, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने लिख रखा है ABCD, छोटा छोटा, तो ये छोटा ट्रायंगल B, ये C और ये छोटा वाला D। ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा है विच इज़ A। टैरिफ रेवेन्यू लॉस क्या हो रहा है, देखो पहले C और E वो टैरिफ में मिल रहा था उनको, तो टैरिफ रेवेन्यू लॉस हो गया। ठीक है, जो 1 रुपीज़ वो टैरिफ गेन कर रहे थे वो लॉस हो गया पूरा। नेक्स्ट है नेशनल वेलफेयर, अगर हम निकालेंगे तो वो हो गया B + D - E, दैट इज़ नेट लॉस और नेट गेन फ्रॉम ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, ट्रेड डाइवर्जन कैन ऑल्सो लीड टू नेट वेलफेयर गेन इफ सम ऑफ area of triangle B + D is greater than area of rectangle E and flatter, that is more elastic DX and SX are, that is demand of commodity X and supply of commodity X। ठीक है, now we'll explain trade creation। So trade creation, it means that FTA through a preferential tariff concession creates trade that would not have existed otherwise. Consequently, supply occurs from more efficient producer of product within the FTA. Trade creation increases welfare because supply occurs from more efficient producer. तो before forming CU, DX and SX जैसे हमने पहले लिखा था are the nations two's domestic demand and supply curve for commodity X, price of good X at free trade 1 है नेशन 1 में, और PX है 1.5 इन नेशन 3। अगर नेशन 2 इम्पोज करता है एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एड वॉल्यूम टैरिफ ऑफ 100% ऑन ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटी X, तो इम्पोर्ट फ्रॉम नेशन 1 हो जाएगा एट प्राइस X, प्राइस ऑफ X गुड इज़ एट $2, और वो 30X इम्पोर्ट करेगा और टैरिफ रेवेन्यू हो जाएगा 30। तो नेशन 2 नेशन 3 से इम्पोर्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आफ्टर टैरिफ अगर इम्पोर्ट करेगा तो प्राइस पड़ेगा $3। अगर वो फॉर्म करता है CU, दैट इज़ कस्टम यूनियन विद नेशन 1, जो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली एफिशिएंट है, तो क्या होता है, लेट्स सी। देखो, अगर इफ नेशन 2 फॉर्म्स CU विद नेशन 1 एंड रिमूव टैरिफ फ्रॉम कंट्री ओनली देन P of X इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब टैरिफ नहीं लगेगा, तो नेशन 2 कंज्यूम 70X। पहले वो कर रहा था 50, अब कर रहा है 70। ठीक है, जिसमें कि 10 पहले वो 20 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो 10 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है और 60 इम्पोर्ट कर रहा है फ्रॉम नेशन 1, नो टैरिफ रेवेन्यू। तो अगर वेलफेयर ऑफ ट्रेड क्रिएशन देखें तो कंज्यूमर को प्रॉफिट हो रहा है A, ये B, ये C और ये D एरिया। ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस में A का लॉस हो रहा है, टैरिफ रेवेन्यू में C का लॉस है, जो 1 रुपया कमा रहे थे वो 30 यूनिट्स पर, और नेशनल वेलफेयर हो गया B + D, दैट इज़ नेट गेन फ्रॉम ट्रेड क्रिएशन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CJM, दैट इज़ दिस एरिया B is the production component, B को production component और D consumption component of welfare gain है। So B is the production component of welfare gain from trade creation and results from shifting production of 10X from less efficient producer, that is nation 2, at the cost of VUIC to more efficient producer nation 1 at cost of VUMC। ठीक है, ये कलर बता रही ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BH, ये वाला BHN, ये वाला जो ए एरिया ये वाला है, इज द कंजम्पशन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलफेयर गेन फ्रॉम ट्रेड क्रिएशन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ 20X। ये बढ़ गया 20X, ये वाला एरिया पहले 70 हो गया, अब पहले 50 थे। ठीक है, इन नेशन 2 गिविंग बेनिफिट ऑफ ZWBH with expenditure of only ZWBN। That is it. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.